Hello student, please sit down. I invite all the respected dignitaries and guests on stage for lamp lighting ceremony. I request Wing Commander Dr. Anil Kumar Tiwari, Deputy Pro Vice Chancellor, Amity University, Lucknow campus, and all the respected dignitaries to present memento to our esteemed chief guest, IS B. Chandrakala Ma'am, Secretary Women Welfare. We have a huge round of applause. अब मैं विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी, डिप्यूटी प्रो वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ को स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी. Our respected chief guest this fine morning, Dr. Ms. Chandrakala ji, IAS, Secretary, Women and Child's Development Department, Government of India. Dr. Anita Padnagar ji, Dr. Manju Agrawal ji, Dean Student Welfare, my colleague and friend, Dr. Tiwari, all eminent ladies, and my dear students. Good morning and a very warm welcome to Aradhya, the celebration on this auspicious occasion of women's achievement. This warm welcome to our guests is not only on behalf of the Amity University Lucknow campus, but entire Amity family, headed by our founder president, Dr. Ashok Chauhan ji, who's a great visionary, our Chancellor, Dr. Atul Chauhan ji, who's a thought leader and a true global citizen. Our own respected Dr. Aseem Chauhan ji, Chancellor, Amity University, Lucknow,
and Chancellor Amity University, Haryana and Rajasthan, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Balvinder Shukla, who's a great visionary. So you can just imagine the growth of the university headed by a lady Vice Chancellor. Let me put it on the record, Amity University, our parent university at Noida, has about 40,000 students. And we have academic control for 5 universities from there, including Amity University Greater Noida, Amity University Lucknow, Amity University Dubai, and Amity University Tashkent. It is the vision of our founder president that we have more than 13 universities in India and similar number of campuses spread across length and breadth of the country. It's indeed a very fortunate and a very auspicious day when we gather to celebrate Aradhya, that is Women's Day. My compliments to our club, Asha Club, for organizing this beautiful event. So aptly named Aradhya means the one who should be worshipped. And I always said the world would be different if India could equal, the world standard to start with. It's around 23% of women participation. And world would be a better, perhaps more peaceful, quieter, happier place if women truly got 50% what they truly deserve. Women's Day is a celebration of women's achievement, and I'm happy that our Dean Student Welfare Department under Asha Club has organized this wonderful event. Let's celebrate the women's achievement and take a pledge that we will not let any stone be unturned till we have achieved the goal, that is making sure women truly are empowered with 50% participation. That should be our dream. Thank you very much for making me part of this great event. धन्यवाद सर। अब मैं हमारी चीफ गेस्ट आईएएस श्रीमती बी चंद्रकला मैम, सचिव महिला कल्याण विभाग को मंच पर अपने ओजस्वी वर्णों से ऊर्जावान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के सारथी और इस कार्यक्रम की फॉर्मेशन के पीछे जो प्रो डीन साहब हैं और स्टूडेंट डीन मैडम and our most honorable and most respectable Miss Jain and आए हुए समस्त हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित गेस्ट्स और आए हुए आज सभी सम्मान के मोस्ट एलिजिबल विमेन अचीवर्स आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित कर यह सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से मैं रूपल अग्रवाल और उनकी सरलता और एक अच्छी बहन समान आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और महिला दिवस और उसके संबंध में जो कार्यक्रम आज हमारे युवा पीढ़ी के बीच हम लोग शामिल हुए हैं, इसमें मुख्य रूप से एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा हेल्प यू फाउंडेशन के साथ आराध्य इस कार्यक्रम में एक तरह से हम लोग पूरे वर्ष भर हमारे जहाँ जहाँ भी महिला अचीवर्स हैं उन्होंने अपने अथक मेहनत और अथक प्रयास से जो अचीवमेंट्स किए हैं उन सबको आज यहाँ पर सम्मानित करना और उन सबका एक रिकग्निशन आज आराध्या के मंच से होना इस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के ओर से जितना जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ये प्रयास अभूतपूर्व है। और इस तरह के प्रयासों में हम लोग भी अगर शामिल होकर यदि प्रोत्साहन में कोई सा भी रोल प्रोत्साहन के अलावा भी कर सके तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस रोल के लिए हम लोग को बताते रहिएगा रूपल। एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस होल अचीवमेंट एपिसोड। एंड हमारी गर्ल्स द्वारा
जिन क्षेत्रों में, टेक नेम ऑफ एनी फील्ड, एंड आज उनको हम लोग को अलग से कोई प्रोत्साहन ना भी हो, लेकिन टॉप से टॉप हमारे बेस्ट रैंकर्स, दो इट इज़ इन क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, MBA, IIT, everywhere girls have been securing the best positions. And उन्होंने जिस तरह से अपना along with घर परिवार जिम्मेदारियां और उनके प्रोफेशन, मतलब एक महिला यदि अपने जीवन में कुछ हासिल की है तो वो उन्होंने डबल रोल, मोर देन डबल रोल निभाया है। उनको अपना घर परिवार एज वेल एज उनको अपना प्रोफेशन, सो शी कीप्स डबल एफर्ट एंड एट सेम टाइम कभी भी उनके द्वारा ये उफ नहीं कहा जाता कि हमें इतना एफर्ट करना पड़ता है। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ वुमेन। एंड आज यहाँ पर इस सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग करके मुझे बहुत ही अच्छा और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। बट यहाँ पर जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण बैठे हैं उनके सामने मैं कुछ भी कहूँ, इससे ज़्यादा मैं उनसे सुनूँ, उनसे सीखूँ, तो उनके अचीवमेंट्स और हमें और काफ़ी सीखने लायक है। सो मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आप लोगों का अनुभव साझा और उनसे कुछ सीखना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, और इस मौके के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैम। आपने अपनी अति व्यस्तता के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एंड अभिनंदन करते हैं। It's my honor to invite our esteemed chief guest, ISB Chandrakala ma'am, Wing Commander Dr. Anil Kumar Tiwari, Deputy Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Manju Agarwal ma'am, Dean Student Welfare, Dr. Rupal Agarwal, Trustee of Help You Educational and Charitable Trust, Dr. Anita Bhatnagar Jain, Dr. Prachi Srivastav, Associate Professor Bioinformatics, to please come on stage for felicitation ceremony. For the first award, I would like to invite Dr. Richa Arya, who is a writer, Kathak artist and social activist. Can we please have a huge round of applause? Divya Rawat, Institute of Aviation, Hospitality and Retail. Next award we have Miss Anjali Taj. She is a social worker, President Founder of Navrita Foundation, awarded with India Book of Records 2023 for social work. For the next award we have Dr. Jyotsna Singh, Shikshika Rajakiya Balika Inter College, वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेविका। For next award we have Dr. Gyanmati Dikshit. She is an author and content creator. For next award we have Miss Manju Srivastav, who is a singer, classical dancer and a social worker. Next we have Mrs. Neema Pant. Next we have Dr. Prabha Srivastav, dentist and ghazal singer. For next award we have Dr. Prabha Srivastav, who is a dentist and a ghazal singer. Next we have Ms. Rajni Gupta, who is an author and a content creator. For next award we have Ms. Gunjan Verma, who is a social worker, Adhyaksh, Neeru Welfare Foundation, सह संयोजक NGO, प्रकोष्ठ भाजपा महानगर लखनऊ, आयोजिका हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव. Next we have Miss Lata Kadambari, who is a writer and content creator. For next award we have Miss Neelima Kapoor, chef and director, Kapoor Cook and Bake. With 4 decades of culinary mastery, your expertise shine brilliantly, earning you allocates like esteemed Bharat Gaurav Ratna Samman Award. For next
Miss Tripti Kaur Pavaha, who is a multimedia artist and art educator at Kalakriti Creations. For next award we have Miss Pallavi Ashish for painting art. She is a painting artist with brand name Main Palash. Next we have Miss Rachna Mishra, who is a social activist for cows. For next award we have Miss Raj Smriti, author at Folk Tales. As the next awardee we have Miss Vaishnavi Avasthi, who is advocate, writer and a play artist. Next award we have Miss Pankhuri Gidwani, Femina Miss Grand India 2016, an actor, model, social media influencer, a trained Kathak dancer and Uttar Pradesh first brand ambassador for Khadi. Deepika Dwivedi, social media influencer having 2.9 million followers on Instagram. The Sound Dance. Award we have Dr. Srimati Anita Bhatnagar Jain, retired IAS officer and writer. 50 से अधिक प्रकाशनों में बच्चों की कहानियां और किताबों, पर्यावरण और नैतिकता पर आधारित 6 भाषाओं में अनुवादित पत्रिकाओं में यात्रा वृतांत पत्र शामिल हैं. Working for environment since 2 decades, from Bal Paryawaran Vahini of 100,000 children and made a film Hamari Prithvi Hamara Ghar, screened by UNESCO. Next we have Professor Dr. Nidhi Bala, who is an educationalist. For next award we have Dr. Ranjana Vajpayee, who is a social worker. For next award we have Mrs. Sandhya Singh, who is the author and content creator. For next we have Dr. Smrita Rastogi. She is a pathologist running Modern Pathology and Diagnostic Center. We have Dr. Radha Bish, who is an author and social worker. The next award we have Dr. Ankita Singh, Senior Vice President and Global Head of HR, IT, Travel. Another awardee is Gaya Dikshit Madam. She is social worker, author, and content creator. I would like to request ma'am to join the program. For Young Achievers Award, we have Mr. Kartik Dubey, Ms. Sanjana Mishra, Ms. Shruti Mathur, Mr. Y.S. Naqvi, and Ms. Anambakar. Dignitaries to and all are respected. I feel it's time to announce that our honorable chief guest and all our respected dignitaries will release the newsletter of Asha Club. नारी तेरे रूप अनेक, सीता सावित्री दुर्गा एक से बढ़कर एक, स्वयं का उत्थान कर पाई हर डगर पर सफलता आनी. Now we have Aratrika Banerjee with the introduction poem of Asha Club, giving a sneak peek into what Asha Club is doing and is made for. Can we have a huge round of applause for Aratrika? दिल्ली में सुनसान सड़कों पर अकेले चलते हुए वो नारी ढूंढती है बस एक आशा की किरण. वो किरण जो फरिश्ते के रूप में बस किसी अघोरी से उसे बचाए. जालिम लोगों की ये दुनिया इन सुनसान सड़कों पर निराशा भर जाती है, लेकिन हम सब की एक कोशिश उसमें फिर से आशा की किरण दिखाती है. आशा हर एक नारी पर हुए अन्याय के खिलाफ बोलने की. आशा जन्नत वाली जिंदगियों को स्वर्ग दिखाने की. आशा हर हिम्मत हार चुकी नारी की हिम्मत को फिर से जगाने की. आशा डूबे हुए उस सूरज को फिर से उगाने की.
तो आइए हम सब संकल्प लेते हैं अपनी माँ, बेटी और बहन की रक्षा का और उजागर करते हैं उन सभी नारियों की आशा की। कुछ इसी प्रकार हमारा संगठन, जिसका नाम है आशा क्लब, महिलाओं की सुरक्षा और उनको जागरूक बनाने की ओर काम करता है। इस संगठन को आगे ले जाने के लिए कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिनके नाम हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर मंजू अग्रवाल मैम, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश। It's time for a thought-provoking film screening. We'll be watching question and answer challenge on challenges faced by women, where we tackle questions about women's issues in society through a unique and humorous lens. We'll be presenting thought-provoking clips that address these concerns in a light-hearted and entertaining manner. So get ready for an eye-opener. On stage we have our esteemed panelists for panel discussion. एंड वो स्टूडेंट्स जो आज इंटरेस्टेड हैं इस डिस्कशन के भागीदार होने के लिए आप सबको का वेलकम, स्वागत। और निश्चित रूप से इस हॉल से जब हम जाएंगे तो बहुत कुछ सीख कर, या ये कहें फूड फॉर थॉट लेके जाएंगे। कुछ वो विचार जो हमको झकझोरेंगे, कुछ आगे सोचने पे मजबूर करेंगे, उनको ज़रूर हम अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट मैं रखूँगी, अगर हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री करें, तो हम लोग अपनी बातें कुछ मेन पॉइंट्स अगर हम एक डेढ़ मिनट में रखें और उसके बाद हम इनसे इनवाइट करें क्वेश्चंस और फिर उसका रिस्पांस करें, तो शायद हम इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बना पाएंगे। बट इसके लिए मुझे अपने पैनलिस्ट की सहमति चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट से एग्री करते हैं या यू वांट अ डिफरेंट फॉर्मेट? परफेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए आज मैंने कुछ बोलने के लिए अपने को विराम देने की कोशिश की है, क्योंकि बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं एक कविता जो मुझे अच्छी लगी, मेरी स्वरचित नहीं है बट मैंने कुछ कविताएं ढूंढी हैं आज इस ओकेजन के लिए, और उनमें से जितना समय मिला 2-3 आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं पहली कविता से स्टार्ट कर रही हूँ। ये इन कविताओं के लेखकों के बारे में नहीं पता है, तो ये मेरी ही मान लीजिए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। अक्सर मेरे दिल में ख्याल आता है, वो गाना नहीं आगे। अक्सर मेरे दिल में ख्याल आता है कि शहर के हर चौराहे पर, हर एक नुक्कड़ पर चाय की एक गुमटी औरतों के लिए भी होनी चाहिए, जहां खड़ी होकर कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के संग बीच बाजार, भरे चौराहे ठहाके लगा सके, साझा कर पाए अपनी घुमक्कड़ी के किस्से, नौकरी की परेशानियां, नजरअंदाज की गई खपतियां जो हम लोग को अक्सर मिलती रहती हैं, नजरअंदाज की गई खपतियां। और हमें भी देश की इकॉनमी पता है, तो देश की इकॉनमी पर अपने विचार, वायरल हुए जोक्स। और आज भी ये बड़ी त्रासदी है कि अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे विमेन रिलेटेड जोक्स, सेक्सिस्ट जोक्स हम अभी भी पढ़ते हैं। तो क्या हम आज इस मंच को आरंभ करने के पहले, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी के लिए कटिबद्ध हैं, तो क्या हम आज ये प्रॉमिस ले सकते हैं कि हम इन जोक्स को बॉयकॉट करेंगे? How many of you raise your hands to boycott the jokes on women? Please raise your hand. हम women related sexist jokes को boycott करेंगे because everybody loves their wives a lot. They don't want them to go to their micas also. But जब jokes की बारी आती है तो सब हंस हंस के
इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, विच वी शुड नॉट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मालूका खन्ना से कहूँगा कि शॉर्ट में अपनी कुछ बात कहें और सब एक एक करके, और फिर हम इधर से क्वेश्चन आंसर लेके वी विल start the discussion and interaction. Thank you, Thank Doctor. you so much for inviting me here, and it's a big audience, so it's a good platform to raise what we are thinking for ourselves. And I think पहले भी इस मंच से मैंने काफ़ी बार आप लोग से कुछ बातें करी हैं, but this is a good time when we are talking on the International Women's Day with our perspective of inspiring inclusion. तो इसमें मैम का एक आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहा फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड जो पोइट्री कही आई थिंक दैट टच्ड अस मोस्ट, बिकॉज इंक्लूजन इंस्पायर करने में भी दो एस्पेक्ट्स आते हैं. वन इज मेकिंग अ पॉलिसी विच आई थिंक डज नॉट वर्क एज फार एज माय ओन थिंकिंग गोज. आई एम फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड वी हैव सीन लॉज बीइंग मेड, बट दैट इज समथिंग विच डज नॉट चेंज एनीथिंग. बिकॉज आपने देखा कि रिजर्वेशन आया पंचायत में, एवरीबडी मेड फन ऑफ द फैक्ट एंड सेड प्रधानपति होते हैं, एक्चुअली महिला प्रधान नहीं होती. अभी वी हैव टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन इन द हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज, अगेन दैट वाज सेम थिंग विल बी कमिंग. सो व्हाट आई वुड फील इज इफ वी रियली वांट इंक्लूजन, हमें अपने दिमाग को रीगेयर करना है, री इंजीनियरिंग ऑफ आवर ब्रेन्स एंड आवर ब्रेन थॉट्स. एंड उसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार नहीं है, ये मुझे लगता है, क्योंकि महिलाएं भी उतना ही इक्वली हंसती हैं ऐसे जोक्स पे एंड शेयर करती हैं. सो वी फॉर आवरसेल्व्स नीड टू बी अवेयर कि व्हाट इज आवर शेयर. वी आर रेडी टू फाइट व्हेन वी वांट एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड एक्स्ट्रा ज्वेलरी, बट व्हाई आर वी नॉट रेडी टू फाइट व्हेन समबडी इज सेइंग एनीथिंग डेरोगेटरी, नॉट अगेंस्ट अस बट अगेंस्ट जनरली वुमेन. एक ज़माना था जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो सारे जोक्स एक कम्युनिटी पे होते थे. अगेन आई विल नॉट इंक्लूड दैट हियर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट जब मजाक होता था तो एक की बुद्धि के ऊपर बहुत क्वेश्चन होता था और ये कहा जाता था कि 12 बज गए, अब इनसे कुछ भी बुद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती. और धीरे धीरे वो खत्म हो गया. अब वो धीरे धीरे बिल्कुल भी मेंशन नहीं हो रहा है, and people are associating that same community with their entrepreneurship skills, with their enterprising, their valor. तो एक चेंज आया है और आई थिंक ये चेंज वुमेन के लिए भी ज़रूरी है. और हम लोग ने इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रयास करा है, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रयास किया है, वो आई कैन मेंशन कि हम लोग गांव से महिलाओं को लाकर ट्रेनिंग्स देते हैं. इट इज़ नॉट ऑन पेपर. We call them, we make them sit like a panchayat, we tell them how a panchayat is formed, उसके rights क्या हैं, and we make them speak. और जब वो हफ्ता 10 दिन हम लोग के साथ रह के जाती हैं तो गांव में they can inspire inclusion by speaking for themselves. So I think that is one idea that I would give in my 1 minute that I have. Thank you very much. And we can ask the others. Thank you very much for. मेरे 2 लड़के हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं कन्यादान कर सकूं. ये बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जिनकी बेटियां हैं, मेरा ऐसा मानना है. ईश्वर सबको ऐसा सौभाग्य नहीं देता है. तो मेरे 2 ही लड़के हैं, लेकिन मैं अपने लड़कों को ये जरूर सिखाता हूँ कि हम घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे कैसे उसको इनकलकेट कर सकें कि बच्चों को मैगी बनाने के साथ साथ, मेरे लड़कों को मैगी बनाने के साथ साथ कोफ्ता बनाना भी आए, रोटी बनाना भी आए और कड़ी बनाना भी. कि कल को जब उनकी वाइफ ये कहे कि भाई तुम घर में, अभी भी क्या होता है कि घर में अगर कोई, अभी इनफैक्ट अभी वो जनरेशन नहीं आ पाई है जो थोड़ा इतनी मैच्योर हो पाए कि घर में कोई आया और लड़के से आप कह दो कि जाओ जा चाय बना के ले आओ. तो यू यूजुअली से लेडीज कि भाई जाओ जा चाय बना के ले आओ. तो ये जनरेशन खत्म हो सके इसके लिए जितने लड़के इस सभागार में बैठे हैं, जब फादर बनेंगे तो प्लीज अपने बच्चों को जरूर ट्रेन करिए कि कैसे लेडीज की रिस्पेक्ट करी जाती है, कैसे जैसे मैम ने बताया इस तरह के जोक्स को अवॉइड ही नहीं बल्कि डिलीट किया जाता है, और कैसे आप बहुत छोटे छोटे प्रयासों से आप इसको शुरू कर सकते हैं. एक चीज और कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा. ये लोगों का भ्रम है कि ईस्ट में विमेन लिबरलाइजेशन कम है. विमेनिस्ट मूवमेंट अगर आप देखें 1842 में आई थिंक
वो वेस्ट में शुरू हुआ। 4 लेवल थे उसकी, वो चारों वेस्ट से ही शुरू हुए। तो हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया मामला चल रहा था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वेस्ट में चीजें गड़बड़ हुई और वेस्ट में चीजें शुरू हुई और तब जाकर के धीरे धीरे जाकर के पल गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि बेटियों का कन्यादान हम नहीं करेंगे, और इसमें हमने फिर कुछ लॉज भी पढ़े जिसमें ये आया कि कन्यादान करना बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, क्योंकि कई लड़कियों ने इसके ऊपर वो किया था कि हम कमोडिटी नहीं है, हमारा दान मत करिए, हमारा अधिकार आपके ऊपर और आपका मेरे ऊपर अभी भी है। और ये पता चला कि जब 7 फेरे आप लेते हैं, केवल वही एसेंशियल है एक मैरिज को वैलिडिटी देने के लिए। उसके अलावा बाकी सारे चीज़ें जो हैं उससे हम रिश्ते बनाते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं, और पूरे परिवार को हम जोड़ते हैं और अपनी बेटियों को और बहनों को ये भी बताएं कि वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं एलुसिडेट करना चाहूँगी कि पुराने ज़माने में करीब 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, हमारे ज़माने में सब काम में मेन, पुरुष प्रधान समाज इसलिए होता था कि ब्रेन वर्सेस ब्रॉन होता था। मोस्टली काम ब्रॉन से होता था, मतलब शक्ति से होता था। पर नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्मार्टफोन्स, ऑल ऑफ यू हैव लैपटॉप्स। सो ये जो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के आने से ब्रेन का पावर बढ़ गया। We do not need brawn now, we need brain, and both multitasking, brains, understanding, sympathization, compassionate attitude, kindness, everything एक पैकेज है जो कि एक वुमन में आया है। So you can use your brains and you can do anything as much as the men can do. One point. The second thing is that जो प्रत्युष जी ने कहा, men as allies, that is what we need now. Absolutely. So men as allies means charity starts at home. You have sons, I have 2 sons, and thankfully उनको चाय बनानी भी आती है, मैगी बनानी भी आती है, चावल बनाना भी आता है और दाल बनाना भी आता है। So and बहुओं को during the full COVID time they help them बर्तन धोने में, बर्तन मांजने में, सब में they help. एक एजुकेटेड लड़की न्यूट्रिशन घर का सुधार दे, उसका बच्चा सशक्त, उसकी बच्ची सशक्त, और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। So thank you डॉक्टर त्यागी, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले तो मंजू मैम का थैंक यू एंड पीपल। I'm very grateful that I have been given this opportunity to sit here in this panel discussion with all the intellectual people over here. And जो हमारा आज का topic है empowering women, breaking barriers and creating opportunities. So if the panel may allow me, I would like to change the topic a little bit. I think according to the today's scenario, like we are sitting here in this auditorium, we see empowered women everywhere. So if we talk about breaking barriers, we should first talk about the opportunities we have. We already have immense opportunities. Then we need to see which opportunity we need to grab. उसके accordingly हमें अपने barriers को break करना है। इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक श्लोक है संस्कृत में, जननी जन्मभूमिश्च सर्वदापि गरीयसी। तो अगर हम इसका मतलब समझते हैं कि जननी और जन्मभूमि सबसे पहले है, स्वर्ग से भी पहले आती, तो हम लोग ऑलरेडी वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमें आगे आना चाहिए और समाज में बढ़कर समाज की उन महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए और उनके बैरियर्स को ब्रेक करना चाहिए। Thank you so much, Dr. Rupal, for inviting me. It's a wonderful platform to be speaking at, and I am so privileged that I'm so young and I'm still here amongst such experienced people. मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। But on a millennial level to say,
आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है वुमेन की लाइफ में, दैट्स एम्पावर्ड देम, दैट्स हेल्प देम टू ब्रेक बैरियर्स, इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. Once that has come in, I mean, it turns the tables around for women. Because उनको पता है वो अपना ध्यान रख सकती हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती हैं, तो उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना. उन्हें जो भी पार्टनर चाहिए लाइफ में, they can choose that person according to how that person is with them, how compatible they are, and not because किसी एक घर से दूसरे घर में उन्हें ट्रांसफर होना है like a commodity. So I think financial stability is something that's really empowered women. I feel really empowered because of that. And I think we all get that independence from home also when we can take care of ourselves. I think the students would agree here. अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है या काम कर रहा है along with studying, I think that pressure of people around you and the dependence that you have on your parents also decreases. So जब वो dependence उन पे decrease हो जाएगा तो वो dependence हर जगह से decrease हो जाएगा and you become independent and powerful in your own manner. Secondly, I feel एक जो नई चीज़ आई है हमारी जनरेशन में is mental health. Mental health is something that we are really focusing on. और पहले हमें लगता था जो crime against women होती है वो सिर्फ physical abuse होता है, domestic violence होता है, but there is so much more to that. There is so much mental stress and trauma that women are undergoing when even subtle situations of domestic violence are happening. उन्हें बोला जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है बोल के, बट वो पहले नहीं समझ पाते थे. जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता था तभी उन्हें समझ में आता था something wrong is happening. So then 4 more shots please, right? उसमें women can just be themselves. वो मस्ती कर रही है, फन कर रही है, काम कर रही है, फैमिली का ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है. They're just themselves. उन्हें कोई extra sacrificial महान बनने की ज़रूरत नहीं है लाइफ. 3 points have really helped women to break barriers and come ahead. And I would thank men to actually help in the process. Thank you so much. They've almost done anything, but I think it's very important to change this social DNA which permeates our basic thinking. और उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत चेंज करने की ज़रूरत है और सारे नज़रिए को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस नज़रिए में सिर्फ पुरुष ही नहीं उसका हिस्सा है, बल्कि महिलाएं भी उसी सोच का हिस्सा हैं. और जिस तरीके से डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि वो एक धीमी प्रक्रिया है और वो चेंज होगी, क्योंकि हमने पहल की है और उसको काफ़ी दूर तक ले जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Dr. Rupal ji, this chair really belongs to you. Please come over here and do contribute. ये जो एक दिन बना है 8 मार्च जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें कम से कम लोगों को अपने अधिकारों का याद आ जाता है कि क्या हमारे अधिकार है और क्या महिलाओं के लिए हमें करना चाहिए. इसकी कम से कम सेमिनार होते हैं, बातें होती है, तो कम से कम कुछ जागरूकता आ जाती है. लेकिन अभी सर ने बोला था कि पुरुष प्रधान समाज है. मुझे लगता है कि हमारा पुरुष प्रधान हो गया बाद में, पहले ये महिला ही प्रधान था. क्योंकि आप देखिए जब हम श्री मान लगाते तो श्री लक्ष्मी का प्रतीक होता है. और आप देखिए राधा जी, कृष्ण जी, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, सीता के बिना राम नहीं है, और बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है, ऐसा कहा जाता है. ये हमारे मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है. तो इसलिए हम ये कहें कि नहीं पुरुष प्रधान है, मैं इस चीज को नहीं मानती. मैं कहती महिला ये नारी प्रधान था, नारी की पूजा होती थी. इसीलिए वेदों में कहा गया है यत्र नारी पूजते तत्र रमते देवता. ये बीच में से पुरुष प्रधान हो गए, पुरुष प्रधान नहीं है. पुरुष तो वो माँ जो है वही एक पुरुष की जननी होती है, वही जन्म देती है. जो जन्म देती है वो सबसे बड़ी होती है. जन्मदाता भी बड़ा होता है लेकिन जननी सबसे बड़ी होती है. इसलिए जननी की पूजा हमें करनी चाहिए और जननी को मानना चाहिए. हाँ, ये बात सही है कि पहले जो थी महिलाएं बड़ा दब के रहती थी, घर में डरती थी, अपनी सास से डरती थी. और कहती थी लड़की जब पैदा होती थी तो लोग कहते थे बेटी की पहचान एक बाप से होती है, पत्नी की पहचान पति से होती है और माँ की पहचान पुत्र से होती है. ऐसा कहने लग गए थे बीच में सब लोग. क्यों बेटी की पहचान अपने नाम से क्यों नहीं?
क्यों पति के नाम से, क्यों बाप के नाम से? जब बेटा और बेटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बेटा भी माँ का है, बेटी भी माँ की है, दोनों ही रखने हैं, दोनों को प्रेम से रहना चाहिए, दोनों को प्रेम से रखना चाहिए। लेकिन ये हम लोग की गलती है, कहीं ना कहीं हम नारी खुद ही पीछे होती चली गई। दोनों के बराबर राइट्स हैं, उस राइट को माँ को समझाना चाहिए। हम महिलाओं को, जब नारी बदलेगी तो बदलाव आएगा ही आएगा। हमें अपने आप को बदलना है, तब समाज बदलेगा, और सोच को बदलना है, क्योंकि हमें दोनों को एक अधिकार मानना है। हम लोग कहते हैं लड़की है, बताओ अगले घर चली जाएगी, क्या होगा? क्या होगा? आज देखिए, क्या लड़कियों ने नाम नहीं कमाया? कितना नाम है। एक सावित्री थी जो सत्यवान को भी ले आई थी, यमराज से लड़के ले आई थी, कितनी शक्तिशाली सावित्री थी। हमें संस्कारों का ध्यान होना चाहिए कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने को सतत रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी डॉक्टर रूपल। थैंक यू मंजू अग्रवाल जी। यहाँ पर इतने अच्छे वक्ता हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या ब्रेकिंग बैरियर्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतने अच्छे वक्तव्य हमें दिए। तो हमारा ये मानना है कि हम ये कह रहे हैं, हम सब ये कहते हैं कि हाँ, औरतों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, हम पहले से ज़्यादा सशक्त, पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश का कुछ वर्ग ऐसा है, कुछ औरतें ऐसी हैं जो आज भी पिछड़ी हुई जाति से हैं और जो पिछड़े हुए कामों को ही कर रही हैं, जिन्हें आज भी उसी मानसिकता के साथ रखा जा रहा है जैसी मानसिकता सदियों पहले थी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि जहाँ औरतों की समृद्धि होती है वहीं हमारा देश समृद्ध होता है, और हम अपने देश को समृद्धता की ओर लेकर जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ आए हैं, इतनी जो डिस्टिंग्विश्ड वुमेन हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं हम नारी सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि नारी कितनी सशक्त है। लेकिन उसके साथ ही हमें एक जो डार्क पॉइंट है, जो डार्क साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो भी देखना है कि जो हमारे गांव हैं, जो हमारी पिछड़े जो इलाके हैं, जहां पर औरतें आज भी वही काम कर रही हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हमारे इतिहास में औरतों को देवी की तरह पूजा गया है, देवी की तरह रखा गया है। लेकिन क्या सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं दी? सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। तो क्या हमारे लिए वो दिन कब आएगा जब पुरुष अग्नि परीक्षा देगा? वो हमें उसी दिन का इंतजार है कि पुरुष अग्नि परीक्षा दे आए और एक औरत के सामने, एक सशक्त औरत के सामने अपने आप को स्वीकार करे कि मैं गलत हूँ। आज भी जो एक मेल ईगो है वो पुरुष के अंदर कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी हम उस मेल ईगो का सामना करते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज भी जो मेल ईगो है वो एक पुरुष के अंदर से गया नहीं है। आज भी हम ये जो है वो फील करते हैं और उसको सहन भी कर रहे हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा का जब दिन आएगा, वो दिन आएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ, एक औरत ने, एक वुमेन ने कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर लिया है। कहीं ना कहीं हमने अपने देश में, विश्व में और इस विश्व पटल पे एक औरत की जो महिमा है उसको स्थापित कर दिया है और हम सच में देश की आधी आबादी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं पुरुष की ईगो है, और ये बात बताए मोदी जी ने बहुत अच्छी समझी। मैं एक गांव की बात आई, गांव में मैं गई थी काम में, तो एक महिला ने बड़े आराम से कहा कि हमको तो पिताजी कहते हैं तू मेरे घर की सब कुछ है, शहजादी है, सब है, रानी है, लेकिन कभी भी अपनी प्रॉपर्टी हमको नहीं दी है, बेटे को दी है। पति हमेशा कहता है तू मेरी रानी है, तू ही मेरा सब कुछ है, लेकिन कभी नहीं दिया हमें। उन्होंने भी अपने बच्चों बेटे के लिए सोचा। लेकिन एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम हमें सही में रानी बनाया, क्योंकि उन्होंने हमारे नाम पे हमें आवास दिए, शौचालय दिए, हमें उज्ज्वला दी, हमें सौभाग्य दी। एक उन्होंने असली हमें रानी बनाया है। इसलिए कम से कम जो मोदी जी जानते हैं कि जननी है वही समृद्धि बन सकती है, इनकी इस बात से मुझे ध्यान आ गई। वो गांव की महिला की बात, उसने सही में सबके बीच में स्वीकार किया कि असली रानी हमें मोदी ने बनाया, सब कुछ आज हमारे नाम से है। थैंक यू वेरी मच नानिता जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी ओपन द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर।
And anybody who wants to say anything, Professor Dr. or Dayanand. ask anything, or make any comments, please. माननीय मंच और मेरे सामने बैठे मेरी बहनें और भाइयों और प्रिय छात्र छात्राओं, बस मुझे केवल दो बातें कहनी है। जैसे कि अभी मंच से वक्ताओं ने बोला कि नारी प्रधान ही रहा है हमारा देश, तो मैं एक बात इशारा दिलाना चाहती हूँ कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं या एक दूसरे से अभिवादन करते हैं तो क्या कहते हैं? सीताराम, राधे कृष्ण, राधे राधे। तो ये क्या है? ये तब से लेकर सतयुग और द्वापर से लेकर आज तक नारी की प्रधानता को द्योतित करता है। जैसे कि अभी हमारे डायस में एक वक्ता ने कहा, रूपल जी ने कहा कि डार्कनेस भी है और ब्राइटनेस भी, तो ये बिल्कुल सच है। ये हम लोग जानते हैं। देखिए, आज राष्ट्रपति महोदया हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो एक और नारी का इतना उत्कर्ष है और दूसरी ओर सूटकेस में टुकड़ों टुकड़ों में नारी फेंकी जाने के लिए अभिशप्त थी। Thank you very much, दया जी, thank you very much. Yes. के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे रूपल जी की एक बातें तो सभी बहुत अच्छी थी, बहुत तार्किक थी, लेकिन रूपल जी ने जो चीज़ कही पुरुष की अग्नि परीक्षा की बात, तो एक बार तो मैं चौंकी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि क्या आप अपनी गलती को भी स्वीकार पाएंगे, वो बात नारी सम्मान के लिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। Thank you very much. नहीं बनना देवी मुझे, नहीं बनना देवी मुझे, नहीं बनना दानवी, फर्ज से हक जो मिले बनो पूरी मानवी। Thank you. Thank you. First of all, my specific question with Ms. Pankhodi ma'am. You are very young generations and you are influencer. You talked about the money, how ladies are generating incomes and all. So my question is that still there is an gender pay gap still is it in India. What you think about the successful opportunities or strategies are there for the women in terms of compensation and career enhancement? Thank you for that question. I think in the corporate sector especially बहुत सारे ऐसे rules, regulations आ गए हैं where the pay gap has been reduced to a very large extent. In fact, I have an example of a friend's mother who's heading Jaguar ka Maharashtra part. She's like heading the entire area of Maharashtra. So opportunities are definitely opening up in all the streams, and the gender pay gap hasn't decreased a lot. I would say in my particular field, the men have to fight for the extra pay because we get paid. We get paid like the right amount for our work. The men have to fight over there. But in the corporate sector, yes, the gender pay gap is still there. For the same role, लड़कियों को थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, लड़कों को ज़्यादा अमाउंट मिलता है. But I think companies and corporate sectors are bringing about that change. They're bringing the laws and regulations that are closing this gender gap, and I hope it happens more so. I just want to correlate in between that. In today's world also, there is a two-type part of a job. A person who is doing a night shifting, a person who is doing a day shifting. If a girl is selected for a night shifting job, still their parents and who belongs to the village side, because I had also worked in lots of ground level areas, I know that. So their parents also treat them like, don't do this. And still that there is a payment authorities. The man is getting higher paid, but women are not getting that much. So still there is a barrier. What is there to just cut that barrier? Because that is very important to lead India and to overcome all these things of what we are facing, this kind of process. So the first issue is that women have to be aware of their own rights. They do not know that it is their legal right to get equal pay. So number one, we must have many awareness programs like this in which, in fact, we should have a legal person there telling us what our rights are. So that is one big point. And number two, it lies within us.
we have to have negotiation skills. Last sentence. One last sentence, what I have to say, but I just want to speak one line कि जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोबल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम भी नारी है। Thank you very much. एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। Okay, thank you very much. Don't afraid to be yourself. Just don't. Don't be afraid of yourself. Go ahead. We are the creators and we need to create opportunities for others. Hand holding करिए सबकी और सबको आगे बढ़ाइए। Thank you very much. कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं है। एक पत्थर तो कबियन से उछालो मेरे यारों। Thank you very much. तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से पूरा घर मैसेज वुड बी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड एज अ रोल ऑफ अ मदर आल्सो आई थिंक इट्स मोर पावरफुल। करियर इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच आई फाइंड नेसेसरी फॉर मी। उनमें पूरा साथ है नारी जीवन का। नारियां देश की जाग जाए अगर, नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। Now I request Professor Dr. Manju Agarwal Ma'am, Dean Student Welfare, Dr. Rupal Agarwal, Honorable Trustee, Help You Educational and Charitable Trust, and Dr. Prachi Srivastav, Faculty Coordinator, Asha Club, to please present memento to our esteemed panelists. Please present memento to Asha Club core members and advisors. We have Mr. Amit Batch. की समयगत दृश्यता की संवेदनशीलता को प्रस्तुत करते हुए हम एक नाटक आपके समक्ष लाते हैं। कौन आया है? अरे डरो मत, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। आओ चलो, तुम्हें घर छोड़ दें। के बाहर जाके घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं? अरे मैडम, मॉडल स्टाइल, कहाँ जाना है आज आपको? गली से होकर सड़क पे जाओगे, लोग पीछा करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। वो देखो, वो लड़की कितनी सुंदर है। लड़कियों का काम करना भी आज समाज में ऐसा है जैसे कोई गुनाह। अरे देखो देखो, ये तो रोज रोज की तरह ऑफिस से आई है। पता नहीं ऑफिस से ही आ रही है, कहाँ से। धर्म ना कोई धर्म ना कोई शर्म, इन्हें कोई परवाह नहीं। अरे मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं यार? बोलिए तो हम भी साथ चले। खेलने दो, लेकिन किसे क्या पता सुरक्षित है या नहीं। अरे मैडम, खेल तो बड़ा अच्छा कहती है, हम भी आए क्या? बाहर क्या, अपने घर के अंदर भी उन्हें बच के रहना पड़ता है।
फिक्र न कीजिए। कमजोर नहीं, लड़ो तो खुद के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अरे देखो, आजकल की मॉडर्न औरतें भी आती हैं सब्जियां लेने के लिए। पता नहीं क्या ही होगा। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फलक्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ देवता और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बनके जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बनके विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत, महाभारत भी बन सकता है। Singing performance by Miss Monica. Associate Professor Bioinformatics and Faculty Coordinator of ASHA Club to please come on stage for vote of thanks. मैं सर्वप्रथम उस ईश्वर को नमन करते हुए धन्यवाद देती हूँ जिनके आशीष से यह आयोजन संपन्न हो पाया। मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने संस्थापक महोदय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री अशोक चौहान जी का, जो दीपक की लौ बनकर हम सबको मार्ग प्रदर्शित करते हैं। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर अतुल चौहान जी, हमारे अध्यक्ष चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर असीम चौहान जी को, हमारे कुलपति श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी को, जिन्होंने हमको सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा दी। इस प्रकार के आयोजनों को आयोजित करने के लिए एक प्रेरणा दी। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा में सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बी चंद्रकला, IAS सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमको गौरवान्वित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे समस्त सम्मानित वक्ताओं का, डॉक्टर मनुका खन्ना जी, श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी, CA प्रियंका गर्ग जी, मिस्टर प्रत्युष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक व्याख्या चर्चा करी और हमारा ज्ञान वर्धन किया। हमारी विशिष्ट और प्रेरणादायक 30 महिलाएं, 6 यंग अचीवर एवं जो हमारे बीच आज हैं, मैं उनको आभार देने के लिए निशर्त हूँ। आपकी उत्कृष्टता, चहुमुखी प्रतिभा का सम्मान करने का जो अवसर हमको प्रदान हुआ, आप सभी के आगमन पर मैं नतमस्तक हूँ और सहृदय को धन्यवाद समर्पित करती हूँ। अंततः बस यही कहूँगी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम दुलारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ पे भारी है। इस हिसाब के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ हमारे स्पॉन्सर, जिन्होंने हमारे वॉलंटियर्स का लंच स्पॉन्सर किया। वो शायद यहाँ पे आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, पर मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स मिस्टर अमित मौर्य जी का। थैंक यू सो मच। स्टैंड अप फॉर द राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे